Which of the following steps for solution of a network utilizing reciprocity theorem is truly stated? The current in the branch where voltage source was existing earlier is calculated. Reciprocity theorem. In a linear bilateral network, the ratio between response and excitation remains the same even after the position of response and excitation are interchanged. देखिए if figure A and B, the position of excitation E and response I1 are interchanged, but according to reciprocity theorem, the ratio of response and excitation will remain unchanged. Limitation of reciprocity theorem. It is applicable only to single source network and not to multi-source network. It is not applicable to circuit consisting of any time-varying element. It is not applicable to circuits consisting of the dependent source even it is linear. It is not applicable to circuits consisting of non-linear elements like diode, transistor, etc. Discrete signal. Digital signal is continuous in time but discrete in amplitude. Discrete in amplitude means the signal cannot have multiple amplitude value. It can be a 1 or 0. Discrete signal. Signal is discrete in time but continuous in amplitude. A sampling of analog signal gives two discrete signals. Basically, discrete signal are the sampled values of continuous time signal. When a continuous signal is sampled at instant in the time axis, then that is a discrete signal. Digital signal are then quantized value that is it is sampled both in time and amplitude. Analog signal x of t. Quanti quantization. Quantized signal. Sampling. Digital signal. Quantization. Time discrete signal. Sampling. रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखिए दूसरा सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए linear network with multiple source response in any element is the algebraic sum of response caused by each source acting alone. Consider one source active at a time. Detective other source. Thevenin theorem. Norton theorem. Maximum power transfer theorem. Millman theorem. Compensation theorem. If any branch impedance of a network is changed, the resulting change in current in any branch can be found by introducing a compensating voltage. अब देखिए सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एनी ब्रांच इन ए नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्रांच हैविंग द सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट चेंजिंग द करंट इन rest of network. Taylor theorem. In any lumped network that satisfies KCL and KVL, the algebraic sum of instantaneous power of all branches is 0. Mesh analysis, nodal analysis, Kirchhoff laws, source transformation, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिएंट एनालिसिस। आरएल सर्किट में आई ऑफ टी बराबर आई कोष्टक में 1 माइनस ई के पावर स्मॉल टी बटे के टाउ टाउ बराबर एल बटा के आर। आरसी सर्किट फॉर चार्जिंग बी सी ऑफ टी बराबर भी कोष्टक में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा के टाउ
हर डिस्चार्जिंग वी सी ऑफ टी बराबर वी इंटू ई के पावर माइनस टी बटा के टाउ टाउ बराबर आर सी। टाइम कांस्टेंट आर सी के लिए टाउ बराबर आर सी, आर एल के लिए टाउ बराबर एल बटा के आर। रेजोनेंस सीरीज आर एल सी सर्किट। ए सी पावर 19 नंबर पावर फैक्टर। नोड लूप मेश एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट। Identify the correct problem associated with the use of series compensation in EHV transmission system. Line production. Series compensation in transmission line. The series compensation in a transmission line is achieved by connecting a capacitor in series with the inductor. By connecting the capacitor in series with the inductor, the net resistance of the line decreases as the power in the transmission line is inversely proportional to the reactance. The power flow increases in the line, but if the degree of compensation and location of capacitor are not proper, series capacitor produced high recovery voltage across the breaker's contact. Hence, the distance relay used for line protection may not function properly. Types of signal. Analog signal. Continuous time, continuous amplitude, smooth curve. Example: voice, temperature, audio from mic. डिस्क्रीट सिग्नल। टाइम डिस्क्रीट कुछ निश्चित समय पर एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस कोई भी मान ले सकता है, सैंपलिंग के बाद बनता है। यक्स ऑफ टी टी सैंपल्ड ऑडियो सिग्नल। तीसरा डिजिटल सिग्नल। टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट केवल जीरो या एक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी। यक्स ऑफ टी। एग्जाम्पल: कंप्यूटर डाटा लॉजिक सर्किट। इजी डिफरेंस। अब देखिए, सैंपलिंग कंटीन्यूअस डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सिग्नल एक्स ऑफ टी। सैंपलिंग करने के बाद डिस्क्रीट एक्स ऑफ टी सिग्नल। सैंपलिंग थ्योरम एन क्यू आई एस टी थ्योरम। यदि सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी एफ एस कम से कम इस मान की हो, यानी एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एम, जहाँ एफ एम सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो ओरिजिनल सिग्नल को बिना डिस्टॉर्शन के रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एनालाइजिंग अंडर सैंपलिंग। यदि सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी बहुत कम, यानी एफ एस का मान 2 FM से कम हो, तो सिग्नल को गलत तरीके से रिप्रोड्यूस किया जाता है। इसे एलाइसिंग बोला जाता है। इसे लो सैंपलिंग एलाइसिंग। एक्चुअल सिग्नल सैंपल्ड पॉइंट्स। प्रॉपर सैंपलिंग नो एलाइसिंग एक्चुअल सैंपल्ड। और देखिए क्वांटिजेशन। डिस्क्रीट से डिजिटल। डिस्क्रीट से डिजिटल क्वांटिजेशन से बनाया जाता है। देखिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 3। एम्पलीट्यूड को फाइनाइट लेवल में कन्वर्ट करना एक क्वांटिजेशन है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इम्पोर्टेंट सिग्नल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। यूनिट स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी। यू ऑफ टी मतलब कि जीरो, यदि टी जो है कि समय जीरो से कम हो, और फिर 1 यदि जीरो से बड़ा हो अथवा जीरो के बराबर हो। जैसे यू ऑफ टी का देखिए ग्राफ। इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी बराबर 0 यदि टी का मान जीरो के बराबर ना हो। अब देखिए, डेल्टा ऑफ टी का मान इनफाइनाइट यदि टी का मान जीरो के बराबर हो। एरिया इसका 1 आएगा। रैंप सिग्नल आर ऑफ टी बराबर टी ऑफ यू ऑफ टी।
देखिए यहाँ आर ऑफ टी टी इस प्रकार है। अब देखिए पीरियाडिक सिग्नल यक्स ऑफ टी बराबर यक्स ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, यक्स ऑफ टी स्मॉल टी। देखिए एनर्जी पावर सिग्नल एनर्जी सिग्नल ई बराबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी टी का मान इनफाइनाइट से छोटा है और पी का मान शून्य फाइनाइट एनर्जी। पावर सिग्नल पी बराबर लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एक बटा के टू टी समाकलन माइनस टी टू टी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। डी टी का मान इनफाइनाइट से छोटा, ई का मान यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्क्रीट सिग्नल में वैल्यू हर समय पर उपलब्ध नहीं होती, बल्कि कुछ निश्चित समय टी बराबर जीरो, टी बराबर वन, टी बराबर टू पर मिलती है। डिजिटल सिग्नल में वैल्यू केवल डिस्क्रीट लेवल जीरो और वन पर होती है। सैम्पलिंग कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट करता है। क्वांटिजेशन डिस्क्रीट टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। जे एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखिए ट्रांसमिशन लाइन में लाइन रिएक्टेंस को कम करने के लिए लाइन के साथ सीरीज कैपेसिटर लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू फॉर द material of springs used for spring control in indicating instrument? They are not subject to much fatigue. Torque in indicating instrument. There are three types of torque present in an indicating instrument. देखिए the spring used must possess the following properties. It should not be subjected to fatigue. It should be non-magnetic. It should have a low temperature coefficient. It should have low specific resistance. Series compensation in transmission line. The series compensation in a transmission line is achieved by connecting a capacitor in series with the inductor. By connecting the capacitor in series with the inductor, the net reactance of the line decreases as the power in transmission line is inversely proportional to the reactance. The power flow increase in the line. But if the degree of compensation and location of capacitor are not proper, series capacitor produced high recovery voltage across the breaker's contact. Hence, the distance relay used for line protection may not function properly. Series compensation in extra high voltage transmission system. X net of XL minus XC. देखिए स्टार्टिंग एंड रिसीविंग एंड XC, XL, VS, VR, सीरीज कैपेसिटर बैंक। एडवांटेज देखिए प्रॉब्लम एसोसिएटेड लाइन प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, सब सिंक्रोनस रेजोनेंस एसआर, फेरो रेजोनेंस, हाई रिकवरी वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। फिजिकल इमेज सीरीज कैपेसिटर बैंक। सीरीज कैपेसिटर installation on transmission line. How series compensation works. Line has inductive reactance XL which limits current. Series capacitor produces capacitance reactance XC. Net reactance reduces X net बराबर XL minus XC. As X net decreases, current increases. Power transfer increases. Power transfer formula P बराबर EV X net into sin delta. Main problem line protection. Series capacitor changes the apparent impedance seen by distance relay. Relay may under reach or overreach. Fault location becomes incorrect. Misperception of protection may occur. Subsynchronous resonance SSR. Electrical system frequency matches with the
natural frequency of turbine generator shaft. It causes dangerous acceleration and torque, may damage turbine shaft, turbine generator, series capacitor transmission line. SSR occurs mainly in series compensated lines. Ferro resonance, nonlinear inductance plus capacitance combination cases overvoltage and distortion mostly occurs in potential transformer, current voltage transformers, AC source, nonlinear capacitor. Important point quick revision. Series capacitor reduces line reactance, improves power transfer and stability. Overcompensation 80% से ज़्यादा may lead to SSR. Protection schemes must be modified. Series compensation is used in EHV long transmission lines जैसे 220 वोल्ट किलोवोल्ट के बराबर अथवा इससे अधिक. Typical compensation levels 50 से 70% of line reactance normally used. 80% से ज़्यादा risk of SSR increases. 100% resonance condition. 100% से ज़्यादा कैपेसिटिव ऑपरेशन unstable. Application used in extra high voltage extra high voltage transmission system, long transmission line, interconnection of power systems, series capacitor bank in substation. Which of the following improvement is obtained in negative feedback amplifier? More linear operation. Negative feedback amplifier input plus minus beta AOL output. A negative feedback amplifier is an electronic amplifier that subtracts a fraction of its output from its input. The transfer function of a negative feedback amplifier is given by VO of S बटा के VI of S बराबर AOL बटे के 1 प्लस बीटा इंटू AOL. Effects of negative feedback: increase input resistance, reduce gain, increase bandwidth, stability increases, hence providing a more linear operation, reduces noise and distortion. Spring controlled indicating instruments PMMC type. देखिए, they are not subject to much fatigue. Each of the spring material should देखिए रियल इमेज इनसाइड अमीटर पॉइंटर स्केल मूविंग कॉइल आर्मेचर स्पाइरल स्प्रिंग कंट्रोल परमानेंट मैग्नेट ज्वेल बियरिंग सॉफ्ट आयरन कोर डायग्राम इंटरनल कंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्केल स्पाइरल स्प्रिंग अपर मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट स्पाइरल स्प्रिंग लोअर कंट्रोल वेट. How spring control works: when current flow in the moving coil, deflecting torque Td is produced. The spiral spring produces controlling torque Tc in opposite direction. At equilibrium position Td बराबर Tc, so pointer comes to a stable position. When current becomes zero, spring bring the pointer back to zero. Hence, spring material must have low fatigue, should not get weak due to repeated action. Properties required in spring material: should not subject to fatigue, low temperature coefficient of resistance, good elasticity, non-magnetic in nature, high electrical conductivity, should have high angle of twist before permanent set occurs. While low fatigue is important, spring is continuously twisted and
released, released as pointer moves. If material has high fatigue, spring will become weak. This causes error, zero shift, and poor accuracy. Good spring, no fatigue. Bad spring, fatigue failures. Material used for spring: phosphor, bronze, most commonly used. Beryllium, copper, alloy steel, stainless steel. देखिए, types of control system: spring control. Control torque is provided by spiral spring, uniform scale, position independent, high accuracy, portable. Demerit: costly, delicate. Gravity control. Control torque is provided by gravity, simple, rugged. नॉन यूनिफॉर्म स्केल में पोजीशन डिपेंडेंट, बल्कि. वर्किंग ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट: स्प्रिंग कंट्रोल. इंपॉर्टेंट थ्योरी: टीडी बराबर एन बी ए आई, थीटा बराबर एन बी ए बटा के आई. मोर जे एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट: स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड इन पीएमसी इंस्ट्रूमेंट. दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन डीसी. Springs are connected to both ends moving coils. Spring material must be non-magnetic. Spiral springs also carry current to and from the coil. Damping is provided by air friction. Quick revision table: spring shape spiral. Compression spring बनाम gravity. Which of statement is correct for alternating current when compared to DC? Electron keep changing its direction backward and forward. नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर एक्सप्लेन्ड. देखिए, नेगेटिव फीडबैक ब्लॉक डायग्राम. इनपुट भी आई ऑफ एस प्लस, देखिए माइनस ई आई ऑफ एस. एम्पलीफायर जिसका गेन ए है, आउटपुट भी ओ ऑफ एस. फीडबैक नेटवर्क बीटा. ए पार्ट ऑफ आउटपुट इज फीडबैक इन अपोजिट फेज विथ इनपुट. दूसरा देखिए, हाउ इट वर्क्स. आउटपुट का कुछ हिस्सा बी नोड फीडबैक नेटवर्क के थ्रू इनपुट से सब्ट्रैक्ट होता है. इससे इफेक्टिव इनपुट कम हो जाता है, डिस्टॉर्शन, नॉइज और वेरिएशन कम हो जाते हैं. एम्पलीफायर स्टेबल और लीनियर तरीका से काम करता है. ई आई ऑफ एस बराबर भी आई ऑफ एस माइनस बी इंटू भी जीरो ऑफ एस. देखिए, क्लोज लूप गेन इम्पोर्टेंट फार्मूला. ए एफ बराबर भी ओ ऑफ एस बटा के भी आई ऑफ एस बराबर ए बटा के वन प्लस ए बी. ए यहाँ पे ओपन लूप गेन, बीटा फीडबैक फैक्टर, ए एफ क्लोज लूप गेन विथ फीडबैक है. अब देखिए, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक. देखिए, गेन विदाउट फीडबैक हाई, विथ नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज. रिजल्ट लेस बट स्टेबल. स्टेबिलिटी विदाउट फीडबैक लो, with negative feedback increases. Result more stable amplifier. अब देखिए, बैंडविथ विदाउट फीडबैक नैरो, विथ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज. रिजल्ट वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज. डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक हाई, विथ नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज. तो देखिए, रिजल्ट आउटपुट बिकम्स क्लीन. नॉइज विदाउट फीडबैक हाई, with negative feedback decreases. Result better S-N ratio. Linearity without feedback poor, with negative feedback increases. Result more linear operation. Input resistance without feedback depends on type. With negative feedback usually increases. Result better input matching. Output resistance without feedback depends on type. With negative feedback usually decreases.
result better load derive. While linear ऑपरेशन improves, नेगेटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, नॉन लीनियर एरर को कैंसिल करता है, आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शन में रहता है। व्यू वी आई विदाउट फीडबैक नॉन लीनियर, विथ नेगेटिव फीडबैक लीनियर। अब देखिए रियल सर्किट एग्जांपल ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। वी आई इनपुट देखिए C1, R1, R2, RC, देखिए RE, देखिए CE, RF, C2 प्लस VCC, आउटपुट भी नोड। यहाँ RF फीडबैक डाटा है, आउटपुट का कुछ हिस्सा एमिटर के थ्रू इनपुट को अपोज करता है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बैंडविड्थ इंक्रीजेज, गेन डेसिबल में ए मिड, FL, FH। विदाउट फीडबैक नैरो बैंडविड्थ, विथ नेगेटिव फीडबैक वाइड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ FH माइनस FL। विथ फीडबैक बैंडविड्थ इंक्रीजेज। डिस्टॉर्शन रिडक्शन, विदाउट फीडबैक हाई डिस्टॉर्शन, विथ फीडबैक लो डिस्टॉर्शन। देखिए नेगेटिव बनाम पॉजिटिव फीडबैक, देखिए गेन नेगेटिव फीडबैक में डिक्रीजेज, पॉजिटिव में इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीजेज, पॉजिटिव में डिक्रीजेज। डिस्टॉर्शन नेगेटिव में डिक्रीजेज, पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीजेज। नॉइज नेगेटिव में डिक्रीजेज, पॉजिटिव में इंक्रीजेज। बैंडविड्थ नेगेटिव में इंक्रीजेज, पॉजिटिव में डिक्रीजेज। ऑक्सीलेशन नेगेटिव में नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव में पॉसिबल। लीनियरिटी नेगेटिव में इम्प्रूव्स, पॉजिटिव में वर्सेंस। यूज एम्पलीफायर ऑडियो सिस्टम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक ऑक्सीलेटर वेव जनरेटर में। अब देखिए टाइप्स ऑफ फीडबैक बेस्ड ऑन सैम्पलिंग मिक्सिंग। देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सैम्पलिंग आउटपुट वोल्टेज, मिक्सिंग इनपुट सीरीज, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। वोल्टेज शंट फीडबैक, सैम्पलिंग आउटपुट वोल्टेज, मिक्सिंग इनपुट शंट, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। करंट सीरीज फीडबैक, करंट आउटपुट इंक्रीजेज, मिक्सिंग इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। करंट शंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट जेई एग्जाम, नेगेटिव फीडबैक आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में उल्टा जोड़ता है। क्लोज लूप गेन AF बराबर A+1+A इंटू बीटा। गेन कम होता है बट स्टेबल होता है। बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, डिस्टॉर्शन नॉइज कम होते हैं, लीनियर ऑपरेशन इंप्रूव होती है। यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑडियो एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट कम्युनिकेशन सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑफ सोलर? इट यूटिलाइजेज बोथ द बीम एज डिफ्यूज रेडिएशन फॉर हीटिंग। Solar flat plate collector. It is basically a solar thermal energy collector in which solar energy is collected by absorbing radiation in an absorber and then transferring to a fluid. It can be used for a variety of applications in which temperature ranging from 40 degrees Celsius to about 100 degrees Celsius are required. Flat plate collectors have no optical concentrator and the collector area as well as the absorber area are numerically the same. The main advantage of a flat plate collector is that the beam and diffuse component of the solar radiation. In addition, because of its simple stationary design, its construction is easy. Conventional flat plate collector with a with spectrally selective absorber and single glazing has an efficiency of approximately 20%.
Only where vacuum tube collector reach about 50%. Merits of flat plate collectors of solar. Easy to manufacture, low cost, collect both beam and diffuse radiation, permanently fixed, no sophisticated positioning or tracking equipment is required. Little maintenance, reflection, solar radiation, infrared radiation, front glass plane, absorber, thermal out, insulator material, casing, rain wind, convection, reflection. The basic parts that make up a liquid plate collector are the absorber plate, the tube fixed to the absorber plate through which the liquid to be heated flow, the transparent cover, the collector box. A relay whose characteristics is modified by additional mechanical or electromagnetic procession is termed as biased relay. फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है? ये एक सोलर हीटिंग डिवाइस है जो सूर्य की हीट एब्जॉर्ब करता है, पानी या हवा को गर्म करता है। A relay whose characteristics is modified by additional mechanical or electromagnetic procession is termed as biased relay. देखिए biased relay, एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोटेक्टेड सिस्टम एलिमेंट। देखिए CT1 CT2, देखिए I1 करंट, इसमें देखिए I1 माइनस I2 करंट, इधर देखिए I1 करंट जा रही है। देखिए NO N2 N2, I2 करंट देखी जा रही है, फिर यहाँ पे I2 करंट जा रही है। रीस्ट्रेनिंग और बायस्ड कॉयल, a relay in which the characteristics are modified by the introduction of some additional mechanical or electromagnetic quantities and which are usually in opposition to the actuating quantity. In this relay, there are two types of coil. One is the operating coil and the other is the restraining coil. The bias ratio is the ratio of the number of turns of the restraining coil to the operating coil. Additional information. IDMT relay. IDMT relay is an inverse definite minimum time relay. It is one in which the time of operation is inversely proportional to the magnitude of fault current near pickup value and becomes substantially constant slightly above the pickup value of the relay. Static relay. A static relay is a type of relay or an electrically operated switch that has no moving parts. Electromechanical relay. An electromechanical relay is a type of relay which functions using a magnetic field produced by an electromagnetic coil when a control signal is applied to it. It is called electromechanical since it has moving contact in the output circuit which are operated by applying an electrical signal. Real flat solar collector working principle. Sunlight beam plus diffuse passes through the glass cover. Black absorber plate absorb heat. Heat is transferred to the fluid through tubes. Hot water is stored in tank. Copper tube insulation black cover. Sunlight. Construction label diagram. Tempered glass cover. Absorber plate black coated. Rise tube insulation. Collector box. Beam and diffuse radiation. Beam direct radiation. Diffuse radiation comes directly from the sun. Flat plate collector can utilize both beam and diffuse radiation. Component and other direction. Glass cover, absorber plate,
absorb solar radiation and convert into heat. Copper tube carries the heat to the fluid water air. Insulation collector box with a greenhouse effect in collector. Short wavelength radiation passes through glass. Long wavelength radiation heat cannot pass through glass easily. Heat absorbed by absorber plate. Heat is trapped inside temperature rise. Real solar water heating system. Storage tank. Flat plate collector. Advantage of flat plate collector: utilize both beam and diffuse radiation. Simple design and construction. No sun tracking required. Low maintenance. Cost is low. Can be used in cloudy weather also. Disadvantage: cannot produce very high temperature. Efficiency is moderate. Heat losses are more bulky. Large area required. Flat plate concentrating collector. Feature: sun tracking. Flat plate collector not required. Concentrating collector required. Radiation used. फ्लैट प्लेट में बीम प्लस डिफ्यूज. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में ओनली बीम. टेम्परेचर मीडियम 40 से 80 अंश. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में 200 से 1000 अंश सेल्सियस. इफिशियंसी फ्लैट प्लेट कलेक्टर में मॉडरेट. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में हाई. कॉस्ट देखिए लो है फ्लैट प्लेट का. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का हाई है. एप्लीकेशन: फ्लैट प्लेट कलेक्टर का वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, ड्राइंग में. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल हीटिंग में. पैराबोलिक डिश कलेक्टर. पैराबोलिक प्रो कलेक्टर. सोलर पावर टावर हेलियोस्टेट सिस्टम. टिपिकल एप्लीकेशन: सोलर वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, सोलर ड्राइंग, इंडस्ट्रियल हीटिंग. इंपॉर्टेंट फार्मूला: कलेक्टर एफिशिएंसी बराबर ईटा बराबर यूजफुल हीट आउटपुट बटे के सोलर एनर्जी इनपुट. सोलर एनर्जी इनपुट बराबर आई गुणे ए गुणे टी. सोलर कलेक्टर नॉन कंसंट्रेटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर इसमें पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक प्रो, सोलर टावर, लीनियर फ्रेस्नल. लीनियर फ्रेस्नल. क्वाइक रिवीजन. फ्लैट प्लेट collector use both beam and diffuse radiation. It has simple construction and low cost. No sun tracking is required. Used for low to medium temperature application. Which of the following is the merit of minimum oil circuit breaker? The space requirement is reduced. Oil circuit breaker. An oil circuit breaker is one kind of circuit breaker where the insulating oil can be used as an arc quenching medium. It includes separate contact, and the main function of this contact is to separate an insulating oil. When the fault occurs, then the contact of the breaker will open beneath the oil. Once the arc is struck among the two contacts of the breaker, then the heat of the arc will dissolve. The surrounding oil separates into a significant volume of gaseous hydrogen at high pressure. Types of oil circuit breaker. Bulk oil circuit breaker. पहला. This kind of circuit breaker uses a large amount of oil for the destruction of the arc. The size of the oil tank is very large. The amount of oil used in this circuit breaker mainly depends on the system voltage. For instance, if the system voltage is 110 kV, it uses 8 kg to 10,000 kg of oil. Similarly, for 220 kV, it uses 50,000 kg of oil. Minimum oil circuit breakers.
This type of circuit breaker uses less oil. The size of the oil tank is small, hence the space requirement is reduced. It requires less maintenance. What is the biased relay? When the normal operating characteristics of a relay is modified by the addition of mechanical or electrical electromagnetic arrangement such as spring magnet restraining coils etc. It is called a biased relay. Biasing is used to change the sensitivity, stability and operating condition of a relay. A real protective relay photograph. Electromechanical protective relay. Basic working principle of relay: fixed contact, moving contact, spring, armature, electromagnetic coil, yoke. Normal condition de-energized. Contact remains in their normal position. Fault condition energized. Coil gets energized, armature moves and contact change position. Real relay panel in substation. Protection relay used in substation. Why biasing is done? To prevent unwanted tripping, to improve stability of the relay, to improve selectivity in the system, to set the relay according to required operating conditions, to compensate the effect of external factors. Percentage biased differential relay CT1, I1, I2, CT2, protected transformer 8787 differential relay. If I differential exceeds the set value considering percentage bias, then relay operates. Differential relay current IDF बराबर I1 minus I2. परसेंटेज बायस बराबर I1 माइनस I2 बटे की I1 प्लस I2 बटे की 2 गुणेगी 100. ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन I1 CT1 CT2 सेकेंडरी I2 87. फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट I1 इज नॉट बराबर I2 यानी I डिफरेंस बराबर शून्य. रिले डज नॉट ऑपरेट. फॉर इंटरनल फॉल्ट I1 इज नॉट बराबर I2. I डिफरेंस बराबर इज ग्रेटर देन सेट वैल्यू. रिले ऑपरेट्स. टाइप्स ऑफ रिले इम्पोर्टेंट. ओवर करंट रिले ओवर लोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए. डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए. डिस्टेंस रिले ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए. IDMT रिले इनवर्स टाइम प्रोटेक्शन के लिए. बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए. वोल्टेज रिले ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए. फ्रीक्वेंसी रिले ओवर फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए. IDMT रिले इनवर्स definite minimum time relay. Operating time is inversely proportional to the magnitude of current. More current, less time. Less current, more time. टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. टाइम देखिए सेकंड में. वेरी इनवर्स, मॉडरेटली इनवर्स, इनवर्स, लॉन्ग टाइम इनवर्स, डिफिनिट टाइम. करंट देखिए आइए. स्टैटिक रिले बनाम इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले. फीचर कंस्ट्रक्शन. स्टैटिक रिले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल पार्ट होते हैं. मूविंग पार्ट स्टैटिक रिले में नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में होता है. स्पीड देखिए स्टैटिक रिले में वेरी हाई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का लोअर होता है. एक्यूरेसी स्टैटिक रिले का हाई होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का मीडियम होता है. रिलायबिलिटी स्टैटिक रिले का हाई होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का लोअर होता है. मेंटेनेंस स्टैटिक रिले का लो होता है,
इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का हाई होता है। लाइफ स्टैटिक रिले का लॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का शॉर्ट होता है। पावर कंजप्शन स्टैटिक रिले का लो होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का हायर होता है। स्टैटिक रिले इंटरनल व्यूज। मॉडर्न स्टैटिक रिले यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। Electromechanical relay internal view contact moving armature spring coil yoke works on electromagnetic attraction and mechanical movement. Relay characteristics important terms peak up current IP minimum current at which relay start to operate reset current IR current at which relay returns to normal position operating time taken by relay to operate after fault sensitivity ability of relay to sense small fault condition selectivity ability of relay to operate for a particular fault zone only relay operating sequence normal condition system is healthy relay is de-energized दूसरा fault occurs over current or fault occurs तीसरा relay operates coil energized contact change चौथा सर्किट ब्रेकर ट्रिप फॉल्ट क्लियर्ड सिस्टम प्रोटेक्टेड है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिलेज पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन मोटर प्रोटेक्शन जनरेटर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल प्लांट प्रोटेक्शन रिले प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जोन बस देखिए जोन फर्स्ट जोन टू जोन थ्री line relay are set according to zones to ensure selective and reliable operation. Important point quick revision biased relay with modified characteristics. Biasing is done using spring magnet restraining coil etc. Percentage biased differential relay is widely used for transformer protection. IDMT relay work on inverse time principle. Static relay is faster and more accurate than electromechanical relay. Relay are the heart of protection system. आयल सर्किट ब्रेकर यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें इंसुलेटिंग आयल आर्क को बुझाने के लिए यूज होता है जब फॉल्ट आता है। The jumper should always be connected by parallel groove clamps. Parallel groove clamps. These are used in the transmission lines to hold transmission conductor in parallel. The jumper wire used in the transmission line should always be connected by the parallel groove clamps region. They are made up of high strength aluminum alloy bolts. They are designed in such a way that it maintains high contact pressure during cooling and heating cycles. They offer high corrosion resistance and hence are not affected by external atmospheric conditions. What is aisle circuit breaker? An aisle circuit breaker is a device in which insulating aisle is used as arc quenching medium. It has separate contact whose main function is to separate the circuit when a fault occurs. When contact open an arc is formed between them. The heat of the arc decomposes the oil and produces hydrogen gas at high pressure which quenches the arc. Bulk oil circuit breaker BOCB. Minimum oil circuit breaker MOCB. Internal view. Working principle of OCB पहला fault occurs in the system दूसरा contact of circuit breaker open तीसरा arc is formed between contact चौथा oil around the arc gets heated
and decomposes. पांचवा hydrogen gas is formed at high pressure. छठवां hydrogen gas cools the arc and arc is quenched. देखिए arc quenching in IL circuit breaker. Terminal insulator, movable contact, fixed contact. देखिए arc, IL tank. How arc is quenched? When arc is formed, IL gets heated. IL decomposes and liberates hydrogen gas. The hydrogen gas surrounds the arc. It cools the arc and increases the dielectric strength of IL. Arc is extinguished at current zero. Types of IL circuit breaker. पहला देखिए bulk IL circuit breaker BOCB. Large quantity of IL is used. The tank is completely filled with IL. Size is large, more maintenance, more possibility of explosion. Minimum IL circuit breaker MOCB. IL is used in minimum quantity. देखिए requires less space. फिर देखिए less space, less maintenance, size is small. Comparison BOCB and बनाम MOCB. देखिए कंपैरिजन आयल क्वांटिटी के आधार पर, आयल यूजेज के आधार पे इंसुलेशन प्लस आर्क क्वेंचिंग ओनली आर्क क्वेंचिंग होता है एमओसीबी में। टैंक साइज स्पेस रिक्वायर्ड के आधार पर, मेंटेनेंस के आधार पर, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन के आधार पे, कॉस्ट के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पे। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ ओसीबी, टर्मिनल इंसुलेटर, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, आर्क, आयल टैंक। Moving and fixed contact are dipped in oil. When contact separate, arc is formed. Oil around the arc decomposes and produces hydrogen gas. Hydrogen gas quenches the arc. Other types of circuit breakers for JEE exam. पहला SF6 circuit breaker uses SF6 gas for arc quenching. High dielectric strength, high breaking capacity, suitable for high voltage. देखिए दूसरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB, आर्क इज क्वेंच्ड इन वैक्यूम, वेरी लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ, यूज्ड इन इंडोर एप्लीकेशन। आर्क क्वेंचिंग मेथड इन डिफरेंट सीबी सर्किट ब्रेकर टाइप, आर्क क्वेंचिंग मीडियम, आयल सर्किट ब्रेकर OCB, आर्क क्वेंचिंग आयल से। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग मीडियम, एयर कंप्रेस्ड। SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम। पफर सर्किट ब्रेकर में एयर पफर। इंपॉर्टेंट टर्म, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट सीबी कैन इंटरप्ट सेफली। दूसरा मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग फॉल्ट करंट दैट सीबी कैन क्लोज सेफली। रिकवरी वोल्टेज, वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट after arc extinction, rated voltage, maximum voltage at which CV can operate। पांचवा rated current that CV can carry continuously। Applications of OCB used in transmission and distribution system, used in substation, used mainly in old installations, still used in some high voltage system where SF6 is not preferred। देखिए एडवांटेज ऑफ MOCB, देखिए ये सब है एडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ OCB, मोर मेंटेनेंस, आयल हैंडलिंग रिक्वायर्ड, फायर एंड explosion risk, not suitable for modern compact system, less speed compared to modern circuit breaker, fast revision one line, OCB uses oil to quench arc, oil decomposes and produces hydrogen gas, BOCB more oil, large tank, more maintenance, MOCB less oil, small tank, less space, modern CBS SF6 CBS
एंड वैक्यूम सीबी। देखिए, पैरेलल ग्रुप क्लैंप ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को समांतर रूप से पकड़ने के लिए इन क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। जंपर वायर को हमेशा पैरेलल ग्रुप क्लैंप द्वारा जोड़ना चाहिए। अब देखिए, इंसुलेटर स्ट्रिंग सस्पेंशन क्लैंप कंडक्टर। सस्पेंशन क्लैंप क्या होता है? यह एक प्रकार का फिटिंग है जिसका उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को टावर या पोल से लटकाने के लिए किया जाता है। यह कंडक्टर को मजबूती से पकड़ता है और उसके वजन को इंसुलेटर स्ट्रिंग पर ट्रांसफर करता है। यह क्लैंप लाइन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और उसे हवा के झटकों कंपन से सुरक्षित रखता है। ट्रांसमिशन लाइन में जंपर को पैरेलल ग्रूव क्लैंप द्वारा ही क्यों जोड़ा जाता है? यह उच्च स्ट्रेंथ के एल्यूमीनियम एलॉय बोल्ट से बने होते हैं। यह डिजाइन इस प्रकार की गई है कि कूलिंग और हीटिंग साइकिल के दौरान उच्च कॉन्टैक्ट प्रेशर बनाए रखते हैं। इनकी उच्च जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होते। यह कंडक्टर को सुरक्षित और मजबूत जोड़ प्रदान करते हैं, इसलिए जंपर वायर को हमेशा पैरेलल ग्रूव क्लैंप द्वारा जोड़ा जाता है। पहला देखिए, फ्री सेंटर सस्पेंशन क्लैंप। इसमें कंडक्टर हिल सकता है। यह छोटे एंगल बदलाव के लिए उपयोगी है। सामान्यतः सीधी लाइन में प्रयोग होता है। दूसरा, बोल्टेड टाइप टेंशन क्लैंप कंडक्टर को खींचने वाले टेंशन लोड को झेलता है। आमतौर पर लाइन के एंड और एंगल पॉइंट पर उपयोग होता है। पैरेलल ग्रूव क्लैंप जंपर वायर को जोड़ने के लिए उपयोगी कंडक्टर के समांतर में लगाया जाता है। हमेशा जंपर को इससे ही कनेक्ट करें। इनवेलोप टाइप सस्पेंशन टाइप क्लैंप यह कंडक्टर को पूरी तरह से घेर लेता है, अधिक मजबूती प्रदान करता है, भारी कंडक्टर के लिए उपयोगी होता है। पैरेलल ग्रूव क्लैंप देखिए, बोल्ट ग्रूव, बॉटम ग्रूव बॉडी उच्च स्ट्रेंथ एल्यूमीनियम एलॉय बोल्ट से बने होते हैं। कूलिंग और हीटिंग के दौरान कॉन्टैक्ट प्रेशर बनाए रखते हैं। सस्पेंशन क्लैंप और टेंशन क्लैंप में अंतर देखिए। कार्य कंडक्टर को लटकाना सस्पेंशन क्लैंप का। टेंशन क्लैंप कंडक्टर को खींचने वाले लोड को झेलना। देखिए, उपयोग के आधार पर सस्पेंशन क्लैंप का सीधी लाइन में, टेंशन क्लैंप का एंड टावर और एंगल टावर में। अब देखिए, सस्पेंशन क्लैंप का वर्टिकल लोड में, टेंशन क्लैंप का हॉरिजॉन्टल लोड में। उदाहरण देखिए, सस्पेंशन क्लैंप फ्री सेंटर क्लैंप इनवेलोप क्लैंप। टेंशन क्लैंप में बोल्टेड टाइप टेंशन क्लैंप। पैरेलल ग्रूव क्लैंप जंपर कनेक्शन कैसे करें? जंपर वायर के दोनों छोरों को साफ करें। क्लैंप के दोनों ग्रूव में वायर को रखें। बोल्ट को टाइट करें। दोनों बोल्ट बराबर टाइट करें। एक टावर पर जंपर कनेक्शन का उदाहरण है। फेज कंडक्टर जंपर पैरेलल ग्रूव क्लैंप। पैरेलल ग्रूव क्लैंप देखिए इसके बारे में। Identify the incorrect battery maintenance requirement of transmission substation. Check of charger input voltage. Guidelines for maintenance of battery. Check the battery's state of charge. Inspect the terminals, screw clamp and cables for breakage, damage or loose connection. These should be clean, tight and free of corrosion. Ensure the battery top is clean, dry and free of dirt and grime. A dirty battery can discharge across the grime on top of the battery casing. Apply a thin coating of high temperature grease to post and cable connections for added protection. Monitoring battery voltage during charging is extremely important to reduce the risk of overcharging and to check the progress of the battery during recharge. Always keep inside the parameters outlined
In the below table, failure to do so can result in permanent damage to battery. Inspect the battery case for obvious sign of physical damage or warpage. This usually indicates the battery has been overheated or has been overcharged. Which of the following is the correct statement for magnetic circuit when compared to electric circuit? Both the Kirchhoff's EMF law and flux law is applicable to the magnetic circuit. Comparison between magnetic circuit and electric circuit. Magnetic circuit. In a magnetic circuit, molecular poles are aligned and the flux doesn't flow but set up in the magnetic circuit. In a series circuit, the same flux passes through all elements in a series, and the sum of EMFs across the element is equal to the applied EMF. Kirchhoff's EMF law and flux law are applicable to magnetic flux. There is no magnetic insulator. Flux can be set up even in the air. Magnetic lines of flux are closed lines. They flow from N pole to S pole externally, while S pole to N pole internally. Representation of magnetic circuit. Phi, देखिए reluctance R MMF. Electric circuit. In an electric circuit, electric current flow in the form of electrons. In a series circuit, current in all elements is the same but voltage or EMF is different across each element in the circuit. Kirchhoff's current law and voltage law is applicable to the electric circuit. Several electric insulators. Air is a very good insulator and current cannot pass through it. The electric line of flux is not closed. They start from a positive charge and ends on a negative charge. Representation of electric circuit. I R EMF. देखिए बैटरी क्या होती है? बैटरी डीसी पावर का सोर्स होती है। सब स्टेशन में कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी काम के लिए यूज होती है। नॉर्मल सप्लाई फेल होने पर भी ये सिस्टम को चलाए रखती है। सब स्टेशन बैटरी बैंक डीसी सिस्टम। बैटरी मेंटेनेंस क्या क्या चेक करना चाहिए? पहला डिस्चार्जिंग करंट। बैटरी को डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि बैटरी कितना बैकअप देगी। दूसरा सेल टर्मिनेशन क्लीनिंग। टर्मिनल पर कोरिजन जम जाता है। इससे कनेक्शन लूज और रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, इसलिए रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। बैटरी मॉनिटरिंग रिले टेस्ट। मॉनिटरिंग रिले बैटरी वोल्टेज, करंट, अर्थ फॉल्ट etc मॉनिटर करती है। इसकी टेस्टिंग से श्योर होता है कि रिले सही काम कर रही है। अब देखिए चौथा, ये नहीं चेक करना चाहिए। बैटरी मेंटेनेंस डिटेल्ड गाइडलाइंस। स्टेट ऑफ चार्ज चेक। दूसरा टर्मिनल स्क्रू क्लैंप केबल्स इंस्पेक्शन। तीसरा बैटरी टॉप क्लीन एंड ड्राई। चौथा अप्लाई ग्रीस। पोस्ट और केबल कनेक्शन पर हाई टेम्परेचर ग्रीस लगाओ। इससे कोरिजन कम होता है और लाइफ बढ़ती है। पांचवा मॉनिटर बैटरी वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। छठवां इंस्पेक्ट बैटरी केस। बैटरी केस में क्रैक, ब्लगिंग, लीकेज चेक करो। अब देखिए फर्स्ट स्टेट ऑफ चार्ज चेक। हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक। टर्मिनल क्लीनिंग, क्लीन एंड ड्राई टॉप, अप्लाई ग्रीस। पांचवा मॉनिटर वोल्टेज, इंस्पेक्ट केस। लेड एसिड बैटरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। देखिए फास्ट चार्जिंग वोल्टेज टिपिकली वैल्यू ऑफ 2.23 से 2.27 वोल्ट पर सेल 25 सेल्सियस पर। पोस्ट चार्जिंग वोल्टेज 2.35 से 2.4 वोल्ट पर सेल 25 सेल्सियस पर। इक्वलाइज चार्जिंग वोल्टेज 2.5 से 2.6।
वोल्ट पर अन सेल्सियस 25 पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी फुल चार्ज 1.25 से 1.28। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्ज 1.12 से 1.15। एम्बिएंट टेम्परेचर 15 से 30 आइडियल। बैटरी मेंटेनेंस डज एंड डोनाट्स करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह देखिए, नहीं करना चाहिए। एडिशनल थ्योरी जेई एग्जाम के लिए बैटरी टाइप्स। लेड एसिड बैटरी मोस्ट कॉमन इन सब स्टेशन। निकेल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी न्यू टेक्नोलॉजी। सब स्टेशन में बैटरी का यूज करते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम सप्लाई, कंट्रोल रिले ऑपरेशन, सर्किट ब्रेकर, ट्रिप क्लोज, इमरजेंसी लाइटिंग एंड अलार्म। बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम बीएमएस, बैटरी बैंक मॉनिटरिंग रिले बीएमएस, वोल्टेज मॉनिटरिंग, करंट मॉनिटरिंग, अलार्म इंडिकेशन। देखिए, किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। फ्लक्स को बनाए रखने के लिए भी एनर्जी की लगातार आवश्यकता रहती है। मैग्नेटिक सर्किट क्लोज पाथ एन आई। मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्लोज पाथ में चलता है। इट डज नॉट स्टार्ट और एंड एनीवेयर। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज पाथ में चलता है। देखिए, ये किसी भी मटेरियल के अंदर से होकर गुजर सकता है। फ्लक्स लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों गलत है अन्य विकल्प? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर नॉट क्लोज्ड। गलत, फ्लक्स हमेशा क्लोज्ड होता है, शुरू और ख़त्म नहीं होता। देखिए, देयर इज ए मैग्नेटिक इंसुलेटर एज फ्लक्स। गलत, फ्लक्स सभी मटेरियल से नहीं गुजरता। कुछ मटेरियल्स में आसानी से नहीं गुजरता है, जैसे आयरन में इजी में, एयर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बोथ द किरचॉफ्स एमएमएफ लॉ एंड फ्लक्स लॉ। गलत, फ्लक्स लॉ लागू होता है पर किरचॉफ्स एमएमएफ लॉ सीधे उसी तरह लागू नहीं होता जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। मैग्नेटिक सर्किट कैसे काम करता है? कॉइल में करंट आई बहने पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स यह प्रेरणा पैदा होता है। यह एमएमएफ कोर में फ्लक्स फाई उत्पन्न करता है। कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स को इनेबल करता है। परमेबिलिटी के अनुसार रिलक्टेंस मोटर के रास्ते में अपोजिशन की तरह काम करता है। फ्लक्स कंटिन्यूअस रूप से सर्कुलेट करता है। देखिए, कॉइल एफएनआई मैग्नेटिक कोर। इम्पोर्टेंट फाई, फ्लक्स फाई एक क्लोज लूप में ही रहता है। मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। एयर गैप बढ़ने पर रिलक्टेंस बढ़ती है और फ्लक्स कम होता है। गुड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सिलिकॉन स्टील हाई परमेबिलिटी और लो रिलक्टेंस देता है। किरचॉफ्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। किसी जंक्शन पर आने वाला कुल फ्लक्स जाने वाला कुल फ्लक्स के बराबर होता है। देखिए, फाई वन जा रहा है यहाँ से। देखिए, एमएमएफ लॉ, सेकेंड लॉ। किसी क्लोज्ड पाथ में एमएमएफ कुल फ्लक्स गुणे कुल रिलक्टेंस। इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल और उनकी परमिएबिलिटी। एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू एक वेरी लो, फ्लक्स पास करना मुश्किल। कास्ट आयरन का 100 से 200 लो परमिएबिलिटी। सिलिकॉन स्टील का हाई परमिएबिलिटी 2000 से 5000। निकेल का 600 से 1000 मीडियम। सॉफ्ट आयरन का हाई परमिएबिलिटी 2000 से 5000। एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, रिले, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, मैग्नेटिक कोर्स इन ड्राइव्स। देखिए, which loss in a DC generator is about 30 से 40% of full load losses?
Armature copper loss, which loss in DC generator is about this 40%. Losses in DC machine. The losses in a DC machine can be divided as रोटेशनल लॉस, कॉपर लॉस। अब देखिए रोटेशनल लॉस तीन तरह के होते हैं, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, आयरन लॉस। देखिए जो फ्रिक्शन लॉस होता है ये दो होते हैं, बियरिंग फ्रिक्शन अल्फा गुणे एन, दूसरा ब्रश फ्रिक्शन अल्फा इंटू एन स्क्वायर, विंडेज लॉस अल्फा इंटू एन स्क्वायर। आयरन लॉस में एडी करंट लॉसेस अल्फा इंटू एन स्क्वायर, हिस्टेरेसिस लॉस अल्फा इंटू एन। अब देखिए कॉपर लॉस दो होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस आई ए स्क्वायर आर ए, फील्ड कॉपर लॉस आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ, वेयर आई ए इज आर्मेचर करंट, आई एफ इज फील्ड करंट। फॉर सीरीज मीटर आई ए बराबर आई एफ, आर ए इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर एफ इज फील्ड रेजिस्टेंस, एन इज द रोटेटिंग स्पीड ऑफ डीसी मशीन। आर्मेचर कॉपर लॉस, armature copper losses Ia square Ra. These losses are about 30 से 40% of the total full load losses. Armature copper losses in a DC generator vary significantly with the load current. Field copper loss बराबर I square SH into RSH. These losses are about 25% theoretically, but practically it is constant. Iron loss of or core loss. These losses occur in the armature of a DC machine and are due to rotation of armature in the magnetic field of the poles. It depends on the frequency, speed, and voltage and does not depend on the load or load current. Hysteresis loss. Hysteresis loss occurs in armature of the DC machine since any given part of the armature is subjected to magnetic field reversal as it passes under successive poles. Hysteresis loss Ph बराबर eta into Bm के पावर 1.6 into F into B, where B max proportional V by F, maximum flux density in armature, F frequency of magnetic reversal, V volume of armature in meter cube, eta estimates hysteresis coefficient. In order to reduce hysteresis loss in a DC machine, the armature core is made of such material which have a low value of estimates hysteresis coefficient or high permeability. Example silicon steel, eddy current loss. In addition to the voltage induced in the armature conductors, there are also voltage induced in the armature core. These voltage produce circulating current in the armature core, which causes eddy current loss. Eddy current loss PE बराबर KE into BM square into F square into T square into V, where K is constant depending upon the electrical resistance of core and T thickness of lamination in meter. In order to reduce ED, the current loss lamination thickness should be kept as small as possible. Mechanical losses. These losses are due to friction and windage. Friction loss example bearing friction, brush friction etc. दूसरा विंडेज लॉस, एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर. These losses depend upon the speed of the machine, but for a given speed they are practically constant. Note: iron losses and mechanical losses together are called stray losses. Which of the following basic electrical parameter in AC and DC system is generally monitored during energy audit? Frequency. The parameters generally monitored during an energy audit may include the electrical parameters such as voltage, current, power factor, active power, apparent power, reactive power, energy consumption, frequency, etc. As per IE Rule 55, the permissible range for supply frequency is ±3%.
of the rated value 50 हर्ट्ज। एग्जाम्पल 48.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज। एज पर IU रूल 54 द वोल्टेज वेरिएशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 6%। एज पर रूल ऑल HT कंज्यूमर्स मस्ट मेंटेन द पावर फैक्टर ऑफ 0.9 10% of kilovolt ampere reactive loss. All HT consumers must bill through kilovolt ampere hour units, not kilowatt घंटा यूनिट्स। एनर्जी ऑडिट का मतलब है बिजली के उपयोग की जांच करना और बचत के उपाय ढूंढना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सामान्य पैरामीटर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी लगातार मॉनिटर की जाती है क्योंकि इससे सिस्टम की गुणवत्ता और उपकरणों की सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है। एसी सिस्टम में एक सेकंड में होने वाले साइकिल की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए, एसी डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी क्यों मॉनिटर की जाती है? उपकरण की सुरक्षा। फ्रीक्वेंसी की निर्धारित सीमा से बाहर होने पर मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि उपकरणों पर अधिक तनाव पड़ता है, जिससे गर्मी बढ़ती है और नुकसान हो जाता है। सिस्टम की गुणवत्ता। सही फ्रीक्वेंसी से बिजली की गुणवत्ता बेहतर रहती है और उपकरण सही तरीके से काम करते हैं। ऊर्जा दक्षता। सही फ्रीक्वेंसी पर उपकरण अधिक कुशलता से काम करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। मानक अनुसार पालन। पाँचवां, प्रक्रिया स्थिरता। महत्वपूर्ण विद्युत पैरामीटर जो एनर्जी ऑडिट में मॉनिटर किए जाते हैं। वोल्टेज। सिस्टम में उपलब्ध विद्युत दाब। करंट। सिस्टम में प्रवाहित धारा। पावर फैक्टर cos फाई। वास्तविक शक्ति बटे की प्रकट शक्ति का अनुपात। एक्टिव पावर वास्तविक काम करने वाली शक्ति। रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली शक्ति। एपारेंट पावर कुल शक्ति P और Q का वेक्टर योग। ऊर्जा उपयोग की गई बिजली। फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। फ्रीक्वेंसी के मानक भारत में 50 हर्ट्ज। सीमा से बाहर होने के प्रभाव। मोटर की स्पीड प्रभावित होती है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर पर अतिरिक्त तनाव। ऊर्जा की बर्बादी और दक्षता में कमी आती है। महत्वपूर्ण बिंदु। रूल 55। देखिए, आपूर्ति आवृत्ति की अनुमति सीमा ±3% 50 हर्ट्ज पर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 वोल्टेज में परिवर्तन 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर फैक्टर। देखिए, सभी EHT उपभोक्ताओं को न्यूनतम 0.9 पावर फैक्टर बनाए रखना होगा। एनर्जी मीटरिंग। एसी और डीसी सिस्टम में निगरानी। एसी में फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। डीसी में वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी रिपल। पैरामीटर को मापने वाले उपकरण। डिजिटल मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, पावर क्वालिटी एनालाइजर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। एनर्जी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की बचत और दक्षता बढ़ाना। देखिए, which of the following point regarding normal over and under excitation on a synchronous motor is true? Both with under and over excitation, change in power factor is greater than in armature current with increase in load. Conclusion of synchronous motor under different excitation. As load on the motor increases, armature current increases regardless of excitation. For under and over-excited motors, the power factor tends to approach unity with increases in load. Both with under and over-excitation, change in power factor is greater than armature current with increase in load. With normal excitation, when the load is increased, change in IA is greater than in power factor.
which tends to become increasingly lagging. The synchronous motor is capable of operating at all types of power factor, either unity power factor, leading or lagging power factor. Lagging power factor if field excitation is such that EB is less than terminal voltage V. The motor is said to be under-excited and it has a lagging power factor. Leading power factor if field excitation is such that EB is greater than V. The motor is said to be overexcited and it draws leading current so that the power factor improves. Unity power factor if field excitation is such that EB बराबर V, the motor is said to be normally excited at 100% excitation, where AB is back EMF and V is terminal voltage. V curve for synchronous motor is shown below. देखिए फील्ड करंट तथा आर्मेचर करंट के बीच में आर्मेचर मिनिमम करंट देखिए लैगिंग पर नो लोड को समय देखिए हाफ लोड पर। अब देखिए फुल लोड पर देखिए लीडिंग लैगिंग क्षेत्र अंडर एक्साइटेड मतलब लैगिंग तथा ओवर एक्साइटेड में लीडिंग। यूनिटी पावर फैक्टर as seen from the B curve of the synchronous motor, when an overexcited synchronous motor is connected to an infinity bus bar and if the field effect IF is decreased, then armature current IA will first decrease up to normal excitation condition and then increased. आसान भाषा में समझे सिंक्रोनस मोटर की फील्ड एक्साइटेशन बदलने से उसका पावर फैक्टर लीडिंग यूनिटी या लैगिंग हो सकता है। लोड बदलने पर आर्मेचर करंट आईए और पावर फैक्टर दोनों में बदलाव आता है। अंडर एक्साइटेशन कम फील्ड करंट लैगिंग पावर फैक्टर, नॉर्मल एक्साइटेशन यूनिटी पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेशन मतलब ज़्यादा फील्ड करंट लीडिंग पावर फैक्टर। लोड बदलने पर अंडर और ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में पावर फैक्टर में बदलाव आर्मेचर करंट के बदलाव से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। लोड बढ़ाने पर अंडर और ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में पावर फैक्टर में बदलाव आर्मेचर करंट के बदलाव से ज़्यादा होता है। सिंक्रोनस मोटर बेसिक डायग्राम 3 फेज सप्लाई स्टेटर आर्मेचर रोटर फील्ड। अंडर एक्साइटेशन कम उत्तेजना फील्ड करंट कम होती है, आईएफ कम तो देखिए ई भी जो होता है वह कम होता है। इंटरनल जनरेटेड ईएमएफ कम होता है, मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। और देखिए आईए ई हाई लैगिंग। अब देखिए नॉर्मल एक्साइटेशन सामान्य तो जो फील्ड करंट सही मात्रा में होती है, यहाँ पे ई ए भी के बराबर होता है। मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। देखिए ई ए भी आई ए। तीसरा ओवर एक्साइटेशन अधिक उत्तेजना बोले तो फील्ड करंट अधिक होती है, आई एफ ज़्यादा होता है, इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ ई ए भी वोल्टेज से ज़्यादा होता है। मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। देखिए आई ए भी और देखिए यहाँ पे आई ए लीडिंग। अब देखिए फील्ड इफेक्ट ऑफ लोड करंट लोड ऑन आई ए एंड पावर फैक्टर। देखिए अंडर एक्साइटेड मोटर पावर फैक्टर देखिए आर्मेचर करंट आई ए लोड बढ़ाने पर पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट आई ए दोनों बढ़ते हैं, पर पावर फैक्टर में बदलाव आई ए के मुकाबले ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए नॉर्मली एक्साइटेड मोटर लोड बढ़ाने पर आई ए में बदलाव
पावर फैक्टर के मुकाबले ज़्यादा होता है और पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है होता है। देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर, देखिए आर्मेचर करंट, आइए पावर फैक्टर तथा लोड के बीच में ग्राफ। तीसरा देखिए ओवर एक्साइटेड मोटर, लोड बढ़ाने पर पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों बदलते हैं, पर पावर फैक्टर में बदलाव आईए के मुकाबले ज़्यादा होता है। देखिए लोड बढ़ाने पर पावर फैक्टर लीडिंग, देखिए आर्मेचर करंट। एडिशनल थ्योरी, सिंक्रोनस मोटर को हम अलग अलग एक्साइटर देने पर अलग अलग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करा सकते हैं। यह सिस्टम के पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोगी है। मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाकर सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है। देखिए यह चार्ट। की पॉइंट, लोड बढ़ाने पर अंडर और ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में पावर फैक्टर में बदलाव आईए के बदलाव से ज़्यादा आता है। नॉर्मली एक्साइटेड मोटर में लोड बढ़ाने पर आईए का बदलाव पावर फैक्टर के बदलाव से ज़्यादा होता है। लोड घटाने पर आईए हमेशा घटता है, एक्साइटेशन कोई भी हो बढ़ता नहीं है। एप्लीकेशन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूव करना, रिएक्टिव पावर सप्लाई करना, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, पावर स्टेशन में उपयोग। इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए अमीटर, वोल्टमीटर, पावर फैक्टर मीटर, वाट मीटर। देखिए भी कर्व पोटियार कर्व एक ग्राफ होता है जो सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर करंट आईए को फील्ड करंट आईएफ के साथ प्लॉट करने पर मिलता है। भी कर्व पोटियार कर्व, देखिए सिंक्रोनस मोटर डायग्राम। अंडर एक्साइटेशन, भी कर्व को समझना, ऑप्टिमम एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। भी कर्व से क्या निष्कर्ष निकलता है? भी कर्व के लाभ, भी कर्व प्रैक्टिकल कर्व एग्जाम्पल। सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी दी जाती है। अब देखिए भी कर्व बनाने की प्रयोगात्मक विधि। भी कर्व संबंधित फार्मूला, whose basic principle is that steam is used to drive the turbine fueled by fossil fuel, geothermal power, geothermal power plant, cooling tower, इंजेक्शन वेल। ये पहला हॉट वाटर, दूसरा जनरेटर टरबाइन स्टीम। फिर देखिए द जियोथर्मल पावर प्लांट यूजेज steam to produce electricity. They essentially work the same as coal or thermal power plant. The main difference being the heater source. The steam comes from reservoir of hot water found a few miles or more below the Earth's surface. The steam is used to drive the turbine fueled by fossil fuel that activates a generator which produces electricity. When the pole is on roadside and there is no space for a stay, one pole is used as a support to the line pole from opposite side.
of the stick. This support pole is called strut. The pole देखिए strut pole. This consists of installing a wooden or metal supporting post depending on the material of the pole to be reinforced at the foot of the initial pole so as to strengthen its structure. The loading strut must be placed at the opposite side at pulling out or in the direction of at the compression, the resultant of all efforts exerted by cables. Strut pole. Identify the incorrect feature of static volt ampere reactive compensator of EHV transmission system. Low maintenance cost. बाकी देखिए poor reliability या करेक्ट है लोअर स्पीड ऑफ रिस्पांस ये भी करेक्ट है रिड्यूस्ड पावर सिस्टम एक्सेलेरेशन ये भी सही बात है स्टैटिक वोल्ट एम्पियर कंपनसेटर वोल्ट एम्पियर एक्टिव कंपनसेटर ए स्टैटिक bar compensator is a parallel combination of a controlled reactor and a fixed shunt capacitor shown in the figure below. The thyristor switch assembly in the SVC controls the reactor. The firing angle of the thyristor controls the voltage across the inductor and thus the current flowing through the inductor. In this way, the reactive power drawn by the inductor can be controlled. Fixed capacitor bus inductor L. Static var compensator advantage. The power transmission ability for the transmission line can be enhanced through these SVC devices. The system transient strength can also be increased through the implementation of SVCs in the case of a high range of voltage and for controlling steady states. SVC is generally used, which is one of the foremost advantage. SVC increases the load power rating and so the line losses will be decreased and system efficiency enhances. The disadvantages of the static var compensator are as the device has no revolutionary part for the implementation of surge impedance compensation, additional equipment is needed. The size of the device is heavy, which causes high maintenance cost. Deliberate dynamic response. The device is not suitable to imply further regulation of voltage up and down because of furnace loads. ESBC circuit diagram. Fixed capacitor. Thyristor control reactor TCR using TSC. Reactor inductor. स्टैटिक बार कंपनसेटर क्या है? एसबीसी एक फैक्ट्स डिवाइस है जो पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। यह मुख्य रूप से कंट्रोल्ड रिएक्टर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, टीसीआर और फिक्स्ड कैपेसिटर के समांतर से संयोजन से बना होता है। एसबीसी का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और सिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। डायग्राम। वर्किंग प्रिंसिपल। टीसीआर में थायरिस्टर बिच्चे का उपयोग किया जाता है। थायरिस्टर का फायरिंग एंगल अल्फा बदलकर इंडक्टर पर लगने वाला वोल्टेज और करंट को नियंत्रित किया जाता है। जितना फायरिंग एंगल बढ़ाया जाएगा उतना ही इंडक्टर से कम रिएक्टिव पावर किया जाएगा। फिक्स कैपेसिटर लगातार कैपेसिटिव बार देता है। एसबीसी कैपेसिटिव और इंडक्टिव बार का संतुलन बनाकर नेट बार शून्य बनाए रखता है। फेजर डायग्राम सिद्धांत समझने के लिए आईसी कैपेसिटिव करंट, वी वोल्टेज, लोड करंट, आईएल इंडक्टिव करंट। आईसी आईएल से बड़ा होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर।
आई सी आई एल के बराबर होता है यूनिटी पावर फैक्टर का। आई सी का मान आई एल से छोटा होता है लैगिंग पावर फैक्टर का। एडवांटेज फायदे, ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ती है। सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ती है। पावर फैक्टर इंप्रूव होता है जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। लोड पावर रेटिंग इंक्रीज होती है, लाइन लॉसेस कम होता है। ये बेसिक के ऑपरेटिंग मोड्स, कैपेसिटिव मोड आईसी का मान आईएल से ज़्यादा होता है। कैपेसिटिव माइनस बार लीडिंग। इंडक्टिव मोड आईसी का मान आईएल से छोटा होता है प्लस बार लैगिंग। यूनिटी मोड आईसी का मान आईएल के बराबर होता है जीरो बार यूनिटी। डिसएडवांटेज, सर्ज इम्पीडेंस कंपनसेशन के लिए एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए क्योंकि इसमें कोई रोटरी पार्ट नहीं होता है। साइज और वेट अधिक होने से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन में, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में, इंडस्ट्रियल लोड कंपनसेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में। यह बेसिस शंट कनेक्टेड स्टैटिक डिवाइस है। की पॉइंट, एसबीसी यह फैक्ट डिवाइस है, शंट कनेक्टेड होता है। इम्पोर्टेड फार्मूला, रिएक्टिव पावर इंडक्टिव बी स्क्वायर बटे के एक्स एल, रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव बी स्क्वायर बटे के एक्स सी, नेट रिएक्टिव पावर क्यू एल माइनस क्यू सी माइनस क्यू एल कैपेसिटिव और है इंडक्टिव के लिए। क्वाइक रिवीजन, कंडक्टर इरेक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में पोल्स टावर लगाना, कंडक्टर वायर को खींचना, इंसुलेटर पर फिट करना, इन सभी कामों को मिलाकर कंडक्टर इरेक्शन कहते हैं। यह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनाने का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। कौन सा काम कंडक्टर इरेक्शन का हिस्सा नहीं है? कंप्रेसिंग एंड होगिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर इरेक्शन के मेन स्टेप्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्टर वायर को साइड तक ले जाना, पोल टावर इरेक्शन, टावर को खड़े करना, क्रॉस आर्म फिक्सिंग, टावर पर सपोर्ट आर्म लगाना, पेइंग आउट स्ट्रिंगिंग, कंडक्टर वायर को टावर के बीच में फैलाना, रियल स्ट्रिंगिंग प्रोसेस। पांचवा, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर, यदि वायर छोटी पड़ जाए तो ज्वाइंट बनाया जाता है। छठवां, इंसुलेटर माउंटिंग, वायर को इंसुलेटर पर फिक्स किया जाता है। अब देखिए रियल इंसुलेटर कंडक्टर माउंटिंग। पेइंग आउट क्या होता है? ड्रम से कंडक्टर वायर को धीरे धीरे निकालना। स्ट्रिंगिंग क्या होता है? वायर को टावर के बीच में प्रॉपर टेंशन के साथ खींचना। इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर यूज्ड, इंसुलेटर, क्लैंप, वायर पकड़ना, पुल्ली, वायर गाइड, स्पेसर, कंडक्टर को अलग रखना, जंपर कनेक्शन देना। Which of the following is not one of the important operation of conductor erection? Compressing and hogging of conductor. Steps for the erection of aerial transmission lines. Transportation of conductor to the work site. Erect the pole and then attach the cross arm. Paying and stringing conductor. Joining of conductor. Mounting the standard conductor to the insulator. Making service steps. If the control spring of PMC type instrument are purposely made of large moment of inertia, then it can be used as a ballistic galvanometer. Ballistic galvanometer. A ballistic galvanometer is an instrument which is used to measure or indicate current in closed circuit. The galvanometer, also is known as the PMC instrument, works on the principle of a permanent magnet moving coil. The force is generated on the coil due to Lagrange force law. Due to the interaction of fluxes, the pointer in the meter is deflected. Once the pointer is deflected, different torque are exerted
on the pointer to make the pointer stop at its steady state position. The different torque are deflecting torque, control torque, and damping torque. In a ballistic galvanometer, the damping torque is almost zero. For that reason, it is called a ballistic galvanometer. It consists of two magnetic poles, north and south. In between the two poles, a coil is placed. Tension head, Casper branch wire, mirror, spring T1, T2, N. Yes. Generator circuit breaker maintenance is carried out only when generator is out of service. The above statement is an example of opportunity maintenance. Opportunity maintenance. It is a form of preventive maintenance based upon convenient replacement of equipment items or component by taking the advantage of unplanned or planned shutdown of a system where we have suitable maintenance resources already on location. Example: generator circuit breaker maintenance when the generator is out of service, motor starter maintenance when the motor is out of service, etc. Corrective maintenance centimeter. It involves the replacement or repair of equipment after it fails. In response to equipment failure, CM task identify the failure and rectify the failure so that the equipment can be reinstated and the facility production is restored. Preventive maintenance. It is the regular and routine maintenance of equipment and assist in order to keep them running and prevent any costly unplanned downtime from unexpected equipment failure. Statutory maintenance. Statutory compliance refers to laws that are set out by the government and enforced by the government that your business or facility must adhere to. These laws tend to be static or not don't often change. देखिए कंडक्टर इरेक्शन का फिगर। कंडक्टर इरेक्शन क्या होता है? कंडक्टर इरेक्शन के मेन स्टेप्स: transportation of conductor to site, erection of poles, towers, fixing of cross arm, paying out of conductor, stringing of conductor, joining of conductor, mounting on insulator, making of service steps. रियल इमेज कंडक्टर इरेक्शन। देखिए पोल टावर इरेक्शन, क्रॉस आर्म, पेइंग आउट कंडक्टर ड्रम, स्ट्रिंगिंग विथ पोलर, जॉइनिंग कंडक्टर, पेइंग आउट रियल। देखिए पेइंग आउट स्ट्रिंगिंग कंडक्टर ऑन सस्पेंशन इंसुलेटर, हार्डवेयर फिटिंग क्लैंप ब्रैकेट, सस्पेंशन क्लैंप, डेड एंड, पैरेलल ग्रूव, जंपर कनेक्शन, स्पेसर डैम्पर, वाइब्रेशन डैम्पर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर रियल इमेजेस। टाइप्स ऑफ कंडक्टर रियल इमेजेस: एएसी, ट्रिपल एसी, एसीएसआर। पिन इंसुलेटर लो वोल्टेज खाते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर हाई वोल्टेज खाते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर डेड एंड के लिए। सैग टेंशन थ्योरी।
सैग फार्मूला, सैग कंडक्टर, इम्पोर्टेंट थ्योरी एसएससी जेई। देखिए, टेंशन, क्वाइक रिवीजन, इम्पोर्टेंट नोट्स। बैलिस्टिक गैलोरीमीटर क्या होता है? बैलिस्टिक गैलोरीमीटर एक स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे चार्ज करंट को मेजर करता है। यह सामान्यतः गैलोमीटर से अलग होता है क्योंकि इसमें डैम्पिंग बहुत कम होता है। पॉइंटर जल्दी नहीं रुकता, करंट पल्स को डिटेक्ट करता है। जब करंट में कॉइल फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लॉरेंज फोर्स लगता है, कॉइल घूमती है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। पीएमएमसी प्रिंसिपल या पीएमएमसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, रियल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, फिजिकल इमेज, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, लेबल्ड डायग्राम, टेंशन हेड, सस्पेंशन वायर, फास्फर ब्रांच, मिरर, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट स्प्रिंग, टर्मिनल T1 T2, construction real images of parts, permanent magnet, vehicle, Torsion head spring, mirror, PMMC principle working, coil deflection, moving coil, torque in galvanometer, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट की वजह से कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फार्मूला NBIA, कैपेसिटर चार्ज मेजरमेंट प्रैक्टिकल सेटअप, फार्मूला T बराबर सी थीटा बटे जी, सी कैपेसिटर, थीटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जी बैलिस्टिक कांस्टेंट। फीचर प्रॉपर्टीज, वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल चार्ज और करंट मेजर करता है। तेरहवां इंपॉर्टेंट नोट्स SSTGR बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पीएमसी प्रिंसिपल पर काम करता है। डैम्पिंग टॉर्क लगभग जीरो होती है। पढ़ लेंगे इसको। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाई सेंसिटिव, स्मॉल चार्ज मेजर कर सकता है। एक्यूरेट एंड रिलायबल, लो पावर कंजप्शन, यूनिफॉर्म स्केल। डिसएडवांटेज, एसी मेजर नहीं कर सकता डायरेक्टली। पीएमसी बनाम एमआई में इंस्ट्रूमेंट, पीएमसी एमआई, पीएमसी लॉरेंज फोर्स, एमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस क्या होता है? जब कोई मशीन सिस्टम पहले से बंद हो और उसी समय उसका मेंटेनेंस कर दिया जाए, उसे कहते हैं मौका मिलते ही मेंटेनेंस करना। इजी एग्जांपल, अगर जनरेटर बंद है, उसी समय जनरेटर सर्किट ब्रेकर की सर्विसिंग कर दी जाए तो इसे अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस कहते हैं। देखिए, रियल जनरेटर सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस, सिंपल हिंदी में डेफिनेशन, जब सिस्टम शट डाउन में हो उसी मौके का फायदा उठाकर मेंटेनेंस किया जाए। देखिए, मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? पावर प्लांट मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फॉल्ट आने से पहले मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, फॉल्ट आने के बाद रिपेयर, अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस, शट डाउन के समय मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, मशीन खराब होने के बाद रिपेयर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर चेकिंग पहले से करना, ऑयल चेकिंग, क्लीनिंग, टाइटनिंग।
रियल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा करेक्टिव मेंटेनेंस, जब फॉल्ट आ जाए तब रिपेयर करना। बर्ट रिले बदलना, डैमेज केबल रिपेयर करना। रियल करेक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, मशीन पूरी तरह बंद होने के बाद रिपेयर करना सबसे कॉस्टली माना होता है। रियल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्रायोरिटी, प्रिवेंटिव लो कॉस्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी मीडियम, करेक्टिव में हाई, ब्रेकडाउन में वेरी हाई। वाई अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा शटडाउन नहीं, टाइम बचत, कॉस्ट कम। जनरेटर सर्किट ब्रेकर, जनरेटर को सिस्टम से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर द interrupters are supported on porcelain insulator लाइव टैंक डिजाइन। लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ब्रेकिंग चेंबर लाइन वोल्टेज पर आता है, यानी पूरा टैंक लाइव आता है, स्विचिंग पार्ट। पोर्सलिन इंसुलेटर इसे सपोर्ट करता है। SF6 सर्किट ब्रेकर टाइप्स वर्किंग फिजिकल इमेजेज। लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर लाइव पार्ट, पोर्सलिन इंसुलेटर सपोर्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग। फॉल्ट आने पर कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, आर्क बनती है, SF6 गैस आर्क को तुरंत बुझा देती है। की पॉइंट, टैंक हमेशा लाइन वोल्टेज लाइव पर होता है, सिंपल कॉम्पैक्ट और सस्ता होता है, कम स्पेस लेता है। लाइन लाइव, इंटरप्टर लाइव टैंक, पोर्सलिन इंसुलेटर। डेड टैंक सर्किट, पोर्सलिन बुशिंग इंसुलेटेड, मेटल टैंक अर्थड, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग। की पॉइंट, टैंक अर्थ पोटेंशियल पर होता है, अंदर इंटरप्टर होता है, सीटी लगाना आसान होता है, सेफ्टी ज़्यादा होती है। लाइन पोर्सलिन बुशिंग, मेटल टैंक अर्थड, सिंगल प्रेशर बफर टाइप सीबी, इंटरप्टर, बफर सिलेंडर, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग। की पॉइंट, बफर सिलेंडर पिस्टन, इंटरप्टर आर्क चेंबर, फास्ट आर्क एक्सटेंशन आजकल सब स्टेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। डबल प्रेशर SF6 सर्किट ब्रेकर, हाई प्रेशर SF6 गैस चेंबर, इंटरप्टर आर्क चेंबर, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग। हाई प्रेशर SF6 गैस अलग चेंबर में स्टोर रहती है, ऑपरेशन के टाइम गैस आर्क चेंबर में छोड़ी छोड़ी जाती है, गैस आर्क को बुझा देती है। की पॉइंट, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, हाई प्रेशर गैस टैंक आर्क चेंबर। फिजिकल कंपैरिजन, रियल इमेजेज, लाइव टैंक सीबी, डेड टैंक सीबी, बफर टाइप सीबी, डबल प्रेशर सीबी। क्वाइक कंपैरिजन, टैंक कंडीशन। इम्पोर्टेंट थ्योरी पॉइंट, समरी याद रखो।